آپ لوگ زیارت کریے، ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہو جائے گا، یہیں سے کر لیا۔ جبہ شریف چل رہا ہے، یہ نبی محترم، یہ سرکار کا جبہ مبارک۔ درود پاک کا نذرانہ پیش وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد۔ یہ درود پاک کا نام پیش کریں گے۔ سرکار یہ زیارت آپ لوگ کر رہے ہیں، اور دوسرے پیٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دستار معظم یعنی کہ امامہ مبارک کی زیارت کرائی جائے گی۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ یہ بادشاہ تیمور عرب سے حاصل کر کے ان کو لایا تھا، اور اس کی مثلاً یہ رہے، اور اس کے بعد میں عملیہ سلطنت کا دور شروع ہوا، ان کے پاس رہے۔ جانے دو بھیا، جانے دو، روکو مت دیجیے، ہٹو، جگہ دو، جگہ دو۔ ارے کیا ہے، کیا ہے، پکڑ لوں مائک آئی ڈی ارے بیٹا ایسے پکڑ لیجیے، چینل کی آئی ڈی چلو چلو درود شریف پڑھیے آپ لوگ درود پاک پڑھیں۔ چلیے چلو چلیے درود پڑھیں آپ لوگ۔ یہ نہیں دیکھ رہا کون سا موقع ہے چیخ پر مجا۔ دستار معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دستار معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ زیارت کریے، دل میں دعائیں مانگیے، زیارت کریے، دل میں دعائیں مانگیے، اس کے صدقے میں دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ تھوڑا بیٹھ جاؤ بھیا، بیٹھ جاؤ، مت بناؤ۔ اب دیکھ لیں گے سب۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جاؤ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دستار معظم ہے۔ آپ تمامی آزاد درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور زیارت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دستار معظم ہے۔ اس میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھیا، بیٹھ جاؤ، زیارت کریے۔ زیارت بہت بڑی چیز ہے، زیارت بہت بڑی چیز ہے۔ جانے دو بھیا، جانے دو، اندر جانے دو۔ ہم لوگ ہاتھ لگائیے، ہاتھ حافظ شاہ جمال اللہ صاحب کی شہادت مبارک، ہمارے آقا کے پیر و مرشد جد امجد رامپور شریف حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چادر مبارک کی زیارت آپ کر رہے ہیں۔ چادر مبارک کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ رامپور شریف حافظ شاہ جمال اللہ صاحب ہمارے آقا کے دادا پیر۔ دور رکھو بھیا، موبائل دور رکھو، اپنا دور سے موبائل رکھو، دور۔ چادر شریف، اس میں چادر شریف ہے ہمارے آقا کے جد امجد قبلہ حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ رامپور شریف کے، ان کے اس میں تبرکات ہیں۔ تمامی حضرات جو ہے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر سے گھوم جائے گی تو مطلب ہو جائے گا، ضرور نہیں ہے اس سے ہاتھ لگانا بھیا۔ دیکھنے بہت بڑی عبادت ہے، دیکھنے بہت بڑی عبادت ہے اس کی۔
یہ शाह दरगाही महबूब इलाही हाफिज साहब के जो खलीफा हैं रामपुर शरीफ में, ये उनकी चादर शरीफ है। शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह। हाथ न लगाए भैया, देखने की जियारत करना बहुत बड़ी इबादत है। इसकी दुआएं मांगिए आप लोग, इसे देख के दुआएं मांगे, दुआएं कबूल होती है। रामपुर शरीफ में इसमें क़िबला शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की चादर शरीफ है। रामपुर शरीफ क़िबला शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह। दरूद पाक का नजराना अब आपको हाथ बतलाओ कोई भी। अब आपको हमारे आका पीर मुर्शिद शाही मोहम्मद बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह के तबरुकात की ज़ियारत कराई जाएगी। इसमें तबरुकात हमारे आका के बशीर मियां हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के तबरुकात हैं। इसमें ज़ियारत करिए। हमारे आका क़िबला ख्वाजा मोहम्मद बशीर मियां हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के तबरुकात हैं। भैया ऊंचा कर लो, ऊंचा कर लो। जब मियाँ इसमें एक नकाब है, जो मियाँ इबादत के टाइम जब जलाल होता था तो अपने चेहरे पर पे डाल लेते थे, ताकि कोई उस वक्त मियाँ के चेहरे में बहुत जमाल होता था, लोग देख नहीं पाते थे, ताप नहीं ला पाते थे, तो अपना वो नकाब डाल लेते चेहरे में। इसमें वो नकाब है। और मियाँ की एक इसमें रुमाल भी है, जिसको एक दस्ताने मुबारक है इसमें, जिसको मियाँ अक्सर जाड़ों में कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। वो तबरुकात हैं, इसमें आप लोग ज़ियारत करें और दुआएं मांगे। इसको सस्ते में सब दुआएं पूरी होती हैं। आप लोग बड़े आराम से इत्मीनान से तबरुक लेके आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ियारत करेंगे और फिर मज़ार शरीफ की कदम बोशी करेंगे। बहुत आराम से इत्मीनान से अंदर जाएं। बरेली दरपा पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे बशीर मियां हुजूर की दरगाह की, जहाँ पर तबरुकात का एहतमाम का जो है वो नजराना जो है जो उसको पेश किया गया, लोगों ने उसके दीदार किए। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ कसीर तादाद में यहाँ पर चाहने वाले आए हुए हैं। और लाइव तस्वीरें आप बरेली दरपा पर देख रहे हैं। ये नज़ारा है वाकई देखने के लायक है। और आपको मैं बता दूँ, आप लाइव तस्वीरें बरेली दरपा पर देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैं कोशिश करूँगा यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानकारी देने की। यहाँ पर कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं। आप लाइव तस्वीर बरेली दरपा पर देख रहे हैं। एक मिनट रहिए, इसको पकड़ लेना, ऐसे करके लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। इसको आप जरा कपड़े से, अरे इसे पकड़ तो लो। बोलना मत, एक मिनट जीते आप बैग ले लो। बैठ जाओ। बरेली दर्पण पर आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं बशीर मियां हुजूर की दरगाह, बशीर मियां हुजूर की दरगाह की। और बहुत सारे ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़ायरीन से बात करने की।
اور آپ کو یہ لائیو تصویریں بریلی درپن دکھا رہا ہے. آپ نے جس طرح کی تصویریں دیکھی, جو ویڈیو دیکھا آپ نے, اس میں خاص طور سے تبرکات کا جو ذکر کیا گیا ان کو بریلی درپن نے دکھایا. یہاں کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں. آپ بریلی درپن پر لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں, اور میں نے جب بھی اس طرح کے کچھ بھی پروگرام ہوتے ہیں تو بریلی درپن ہمیشہ کوشش کرتا ہے آپ تک وہ تصویریں پہنچانے کی. اور اس وقت بریلی درپن پہنچا ہوا ہے بشیر میاں صاحب کی درگاہ پر, اور بشیر میاں صاحب کے بارے میں کیا لوگوں کا عقیدہ ہے اس کو بھی میں ضرور جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا عقیدہ ہے صاحب بشیر میاں صاحب کا, کیا عقیدہ ہے آپ بتائیں تھوڑا بزرگان دین کا. اچھا, آپ کو نہیں معلوم؟ جی, ارے ایسا مت بولیے, لائیو ہے. جی حضرت بتائیں, بزرگان دین کے بارے میں کچھ بتائیں, کیا عقیدہ؟ ارے عقیدہ کیا, دنیا جھکتی ہے ان کے یہاں ان کے ساتھ. اور یہاں کے جو کمیٹی کے ہیں, یہ منع بھائی ہمارے بہت بہترین ہیں, اور ابرار بھائی بہت بہترین, اور ہمارے نثار بھائی کا جواب نہیں ہے. جس کا جو سب سے بڑے صدر صاحب جو ہیں منع بھائی, ان کا لڑکا جاوید, اس کا بھی جواب نہیں ہے صاحب میرے. اور یہاں تو آج بتائیے, آج کس دیدار جو ہوا ہے کن کن تبرکات کا ہوا ہے, آپ بتا پائیں گے؟ ہاں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ بتا دیجیے, ان سے جی, آپ اپنا تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں, اور تھوڑا سا آج کا پورا بتائیں کہ آج دیدار جو ہم لوگوں نے کیے ہیں تبرکات کے, اور پورا ایک سال میں سمجھتا ہوں اس کا انتظار رہتا ہے. سال میں یہ 2 بار ہوتے ہیں. ایک میلاد النبی کے موقع پر اس کی زیارت ہوتی ہے, اور ایک جب میاں کا قل شریف ہوتا ہے اس کے دوسرے دن اس کی زیارت کروائی جاتی ہے. یہ سلسلہ سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے, بہت قدیمی سلسلہ ہے یہ. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی دستار مبارک ہے, اور شاہ درگاہی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات ہیں, حافظ جمال اللہ صاحب کے تبرکات ہیں, اور کچھ تبرکات ہمارے آقا پیر و مرشد قبلہ حاجی شاہجی محمد بشیر میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات ہیں. تو آپ نے کہا جیسے سال بھر میں 2 بار اس کے دیدار کرائے جاتے ہیں, باقی اس کو رکھ دیا جاتا ہے, کیا رہتا ہے, یا درگاہ میں رہتے ہیں رکھے؟ جی, باقی یہ درگاہ میں ہی رہتے ہیں, میاں کے سراہانے رہتے ہیں, اور سال میں ان کی 2 بار زیارت کرائی جاتی ہے. ایک تو میلاد النبی کے موقع پر اس کی زیارت ہوتی ہے جب نکالا جاتا ہے, اور ایک یہ میاں کے قل کے دوسرے دن نکالا جاتا ہے اس کو. اس وقت جو ہے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ اس ٹائم زائرین کافی دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں, میاں کے مرید چاہنے والے عقیدت مند آئے ہوئے ہیں, اور لگ بھگ شہر سے بھی اور باہر سے بھی سبھی جگہوں سے کافی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں حاضری کے لیے. اچھا, جہاں تک ہے قل شریف تو ہو گیا کل, کیسا رہا 2 روزہ جو عرس کا اہتمام کیا گیا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ ہم نہیں پہنچ پائے تھے, ہمارے لوگ کم سے کم. جی ماشاءاللہ بہت بہتر رہا, بہت اچھا رہا. کافی زائرین لوگوں نے میاں کی یہاں کی زیارت کی, اور یہاں پر کافی گائیڈ لائن کا پالن بھی کیا گیا. کووڈ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر بھیڑ کو روک کر تھوڑا بھیجا گیا درگاہ پہ, اور کافی جو ہے بہت زیادہ بھیڑ اکٹھی نہیں ہونی تھی درگاہ پہ. نیچے بھی لوگوں نے, کافی لوگ ہمارے یہاں انتظام میں لگے ہوئے تھے جو کہ اس کو مینیج کر رہے تھے. کیا ہم وہ وہاں جو تبرکات خاص طور سے میاں حضور کے رکھے ہوئے ہیں اس کے دیدار ہو رہے ہیں؟ ابھی کھلا ہوا ہے وہ بشیر میاں کے وہاں نیچے جو رکھے ہوئے ہیں؟ جی, اس کے بھی دیدار عرصوں میں وہ کھول دیا جاتا ہے, زائرین وہاں پر کھلا ہوا ہے وہ؟ جی, اس وقت کھلا ہوگا. کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں, کیسے جائیں گے؟ جی بالکل جا سکتے ہیں. یہاں سے جہاں پر میاں کی کھٹولی شریف ہے تو وہاں پر جا کے آپ یہ مزار سے نیچے اتر کے سامنے گلی میں جہاں میاں آرام کرتے تھے وہ میاں کی کھٹولی شریف ہے, وہیں پہ میاں کے تبرکات موجود ہیں. میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دنیا بھر کے لوگ جانیں. ایک بار میں گیا ہوں لیکن دکھا نہیں پایا تھا, تو کوئی ایک جانکار اگر ساتھ میں رہے تو زیادہ بہتر رہے گا. تو میں چاہتا ہوں اگر آپ چل سکتے ہیں, یا ناظم میاں صاحب سے ایک بار ناظم میاں ہیں کیا؟ جی جی جی, ان سے اگر آپ بلا لیجیے, ان سے بھی میں تھوڑا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. جی جی, چلیے میں آپ کو دکھواتا ہوں. عام دنوں میں تو وہ بند ہی رہتا ہے, لیکن خاص موقعوں پر میاں کا عرس ہے اور خاص موقعوں پر اس وقت کھلا رہتا ہے تاکہ لوگ اس کی زیارت کر سکیں اور فیض یاب ہوں. جی جی, وہاں چلیں گے, ابھی ہم چلیں گے, لیکن اگر ناظم میاں صاحب سے تھوڑا سا بات کرا دیے انشاءاللہ پھر وہاں چلیں گے. ہمارے درشک ضرور وہ بھی دیکھنا چاہیں گے. جی, ابھی تبرکات رکھے جا رہے ہیں, ابھی وہ تھوڑا ہم وہاں چلیں پھر اگر آپ کے ساتھ میں. جی بالکل چلتے ہیں, بالکل چلتے ہیں. چلیے, تو آپ کا نام جناب بتا دیں. جی, میرا نام کلیم میاں ہے, میں یہیں درگاہ پر رہتا ہوں. اور کلیم میاں صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں. کلیم میاں صاحب نے جس طرح سے ہم کو
बुजुर्गान दीन के बारे में, बशीर मियाँ साहब के बारे में बताया, तबर्रुकात के बारे में बताया। और मैं बता दूं खास तौर से बरेली दर्पण आपको उन तबर्रुकात का दीदार कराने जा रहा है जो बशीर मियाँ हुजूर के हैं। चलेंगे लेकिन उससे पहले कुछ लोगों से जानेंगे क्या कहेंगे साहब दरगाह को लेकर के, कैसी आपकी अकीदत है यहाँ पर? यहाँ पे अकीदत में इतनी सच्ची पक्की है कि हमारी हर मुराद पूरी होती है। यहाँ बशीर में हुजूर सरकार के हम ये समझ लो दिलो जान से चाहते हैं। यहाँ हम जब तक नहीं आते हमारा दिल नहीं लगता है, यहाँ आए बगैर चैन नहीं पड़ता है। हमारा वो अकीदा है, वो हमें मोहब्बत है बशीर में हुजूर सरकार से। वाकई बहुत अकीदा है बुजुर्गान दीन का। और कहा जाए कि हमारे साथ कलीम मियाँ साहब जा रहे हैं जो दरगाह के खादिम हैं, तो और तबर्रुकात जी आइए चलिए। तो यहाँ पर बहुत सारी कहा जाए कि कसीर तादाद में जो है खातून भी यहाँ पर आई है, ख्वातीन हैं। और उनका को जो है कहा जाए कि ये वो बुजुर्गान दीन है कि ये वो दरगाह है, यहाँ पर नेक और जायज़ दुआएं सबकी पूरी होती हैं, ऐसा माना जाता है। क्या कहेंगे आप? दुआ मांगी? बेशक क्यों नहीं जी, जो दिल से जो मांगा जाता है ज़रूर कबूल होता है यहाँ पर। तो इस तरह से आप कहाँ से आए? मैं बरेली शरीफ से यहीं आया हूँ, किले से। यहाँ पर एक ऐसी दरगाह है जहाँ पर सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन सबकी दुआएं कबूल होती हैं। मेरी भी दुआएं कबूल हुई हैं। देश के लिए दुआ कर रहे हैं हम कि अमन और शांति बहाल हो और हमारे यहाँ पर जो है अमन कायम रहे, बशीर मियाँ का जो है जलवा कायम रहे, बशीर मियाँ के फैज़ से जो है सारे लोग जो हैं वो कामयाब फैज़यान होते रहें। और यही मेरी दुआ है अल्लाह और उसके रसूल से। जी जी, कोरोना के लिए भी दुआ कीजिए। कोरोना से भी, कोरोना के लिए दुआ बहुत दिनों से हो रही है। इस दरगाह से जो है बहुत सारी यानी कि बातें निकली हैं, बहुत सारी अपीलें निकली हैं जिसका पब्लिक के ऊपर जो बहुत प्रभाव हुआ है। और कोरोना हमारे लिए, देश के लिए जो है हमारी यहाँ से जो दुआ हुई है उससे दूर भागेगा इंशाअल्लाह। आप कुछ कहेंगी दरगाह को लेकर के? क्या कहेंगे? कैसे? बहुत अच्छी दरगाह, हाँ बहुत दुआ की, हम सबके लिए दुआ मांगे। और कोरोना की तो बहुत ही खास दुआ मांग रहा है, हमारे मुल्क में चैन अमन कर दे अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में, बशीर के वजह साबिर की दुआओं के सदके में, तो पहल में हर मोमिन की परेशानी दूर करे। कहाँ से आए आप? मैं यही की रहने वाली। यहाँ आती हैं या आज ही आई हैं? नहीं, आती रहती हूँ मैं। आती रहती हैं। कहा जाए कि यहाँ पर जिस तरह से मर्द और औरत सभी यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। जल्दी देखिए, लोगों का कहना है कि सबको तो मुकद्दर से मिला है और मुझे मुकद्दर भी इसी दर से मिला है। हाँ, क्या बात है। तो मैं ज़्यादा जगह जाने का शौकीन नहीं हूँ, मुझे एक ही दर मिल गया है, इसी को मैं मजबूती के साथ पकड़ना चाहता हूँ। अपना बाप होता है। एक बाप को चचाएं बहुत हो सकते हैं लेकिन बाप ही होता है। एक दर को पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो। मैं तो ये कहूँगा इस दर के बारे में कि जिसको ठुकरा देते हैं दुनिया भर वाले, उसको सीने से लगा लेते हैं बशीर मियाँ। ये वो दरबार है बशीर मियाँ का। यहाँ हमारे दादा बचपन से, हमसे भी छोटे थे, इस बच्चे बराबर तब से आते थे और आज हम भी उन्हीं की आल में से हैं जो हम यहाँ तक हाजिरी दे रहे हैं। बेशक। आप कुछ कहेंगी जी? हम अपने बच्चों के लिए कामयाबी के लिए आती है। हमारे बच्चे छुपन से आ रहे हैं, बस उनका करम हो जाए, उनकी दुआ हो जाए जी। उनका करम हो जाए, उनकी दुआ हो जाए। हमारे बच्चे छुपन से आ रहे हैं यहाँ पर। बचपन से आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। मुरादें पूरी होती हैं? जी होती है जी। आपने मुराद मांग ली? बिल्कुल मुराद मांगी जी, पूरी हो गई? हाँ पूरी वो दर है, वो दरगाह है, यहाँ पर जो भी आते हैं जो खिदमत गुजार हैं यहाँ पर। कहाँ पर? आइए चलिए कुछ यहाँ का, क्योंकि उर्स शरीफ चल रहा था तो कुछ खिदमत गुजार से कम हम उनको भी दिखा दें यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर लोगों का। अच्छा साहब, जो लंगर जारी होता है जी, तो यहाँ से होता है। अच्छा। जिसमें से हमारे ये मतलब जो सबसे बड़े जो सदर हैं मुन्ने भाई और उनका साहबजादे जावेद भाई और अबरार साहब और निसार साहब, ये समझ लें आप, ये उनका अच्छा बड़कपन है। और हम लोगों को वो साथ में लेके, जो लोग कमेटी में हैं, कमेटी में भाई, अबरार भाई, मुन्ने भाई और मैं आपको बता दूं ये वो शख्सियात हैं, कहा जाए कि इस दर से कोई भूखा नहीं जाता। यहाँ पर जो है महरूम नहीं रहता और कहा जाए उसके पीछे जिस तरह से पूरा लंगर का इंतजाम होता है, ये टीम करती है। आप देखिए पूरी टीम खड़ी हुई है। बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, इनको कम से कम जानना चाहिए। और किस अकीदे
के साथ, तो किस दल से करते हैं? अरे साहब ये और अच्छा, कितने मेहमान जितने लोग होते हैं उनका सबका इंतजाम हो जाता है? कोई यहाँ से ना भूखा प्यासा बांध के ले जाता है, कोई भूखा प्यासा नहीं रहता है। अच्छा। और ना किसी को रुकावट है, जितना खाओ, जितना पियो, जितना ले जाओ। और उसकी वजह वक्त में होता है या वैसे भी होता रहता है? जिस टाइम यहाँ पे इंसान आता है भूखा नहीं जाता है। वाकई यहाँ पर ये कहा जाता है, अच्छा यहाँ के बारे में ये कहा जाता था बशीर मियाँ के बारे में कि यही वही जगह है जिस जगह पर जो है एक बार हाँ यहाँ पर जो है देखा गया कि आखिर कहाँ से इंतजाम हो रहे हैं, तो नीचे जाने के बाद देखा गया कोयला था, लेकिन वहाँ पर जो है भांडू कोतवाल थे, उन्होंने जद्दोजहद करी यहाँ पे हमारे सरकार के यहाँ, लेकिन वो उल्टी उन्हें मुंह की खाना पड़ी और वो फिर चले गए जी। भांडू कोतवाल, अच्छा। उन्होंने हमारे सरकार पे थोड़ा सा शक क्या करा, जब उन्होंने फरकी मारी तो कोला ही कोला, तो हमारे सरकार ने फरमाया ये हमारा नहीं है, ये जितने गरीब मुस्लिम हैं और ये जो भी मिस्कीन लोग हैं, ये उनका। जब सरकार ने फरकी मारी तो हर फरकी में अनाज निकला, जहाँ हांडू कोतवाल ने फरकी मारी उसमें कोयला और भूसी निकली। ये हमारी सरकार की शान है। ये शान थी बशीर मियाँ हुजूर की, जिसके बारे में पूरी दुनिया में इस बात का की जो है चर्चा होती है। यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता कहते हैं, और वाकई ये वो दरगाह है। यहाँ पर जो है जो लंगर का एहतिमाम होता है वो भी अपने आप में वाकई कहा जाता है कि कोई भी यहाँ से, अभी जैसे बता रहे थे, भूखा नहीं जाता। मैं कोशिश करूँगा कि नाज़िम मियाँ से मुलाकात हो जाए और उन तबर्रुकात की कम से कम हम जो है वो दीदार कर पाएँ जो बशीर मियाँ हुजूर के हैं। यहाँ पर इस तरह से लगातार कहा जाए कि लोगों का आना जाना लगा रहता है। हमारा कैमरा संभल दो, ऐसे थोड़े ऐसे, ठीक है। मेरा मोबाइल आप ले आए वो मंजर जो है वो बशीर मियाँ हुजूर की दरगाह का आप लगातार देख रहे हैं। बरेली दर्पण आपको बहुत जल्द ही बशीर मियाँ हुजूर के सभी तबर्रुकात से जो है वो का दीदार कराएगा। और इस वक्त बरेली दर्पण ने आपको कुछ तबर्रुकात के दीदार कराए थे, लेकिन आज खासतौर से खटोला शरीफ और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चलेंगे। अच्छा, हम बताइए क्या करेंगे? यहाँ पर बाइक कर लीजिए, लाइव करना है, बहुत देर बरेली दर्पण पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जो तस्वीर है वाकई आप देख सकते हैं कि बरेली दर्पण की हमेशा कोशिश होती है, मज़हब चाहे कोई भी हो, जो भी मज़हब के जिस तरह के प्रोग्राम होते हैं उनको बरेली दर्पण ज़रूर कवर करता है। और आप बरेली दर्पण से अभी जुड़िए, अभी आपको जो है जो ख़ास तौर से बशीर मियाँ हुजूर के तबर्रुकात के जो दीदार हम करने जा रहे हैं उनको ज़रूर कीजिएगा आप। वाकई आप पहली बार बहुत सारे लोग दीदार करेंगे, क्योंकि मैं एक बार ज़रूर देख चुका हूँ, लेकिन बरेली दर्पण तस्वीरों को आपको पहले कभी नहीं दिखाई थी। आज पहली बार आप बरेली दर्पण पर उन तबर्रुकात के दीदार करने जा रहे हैं। और मैं बताऊँ यहाँ पर मियाँ का लंगर खाना है, उसको भी मैं दिखा दूँ। और मैं जनाब से पूछूंगा अभी कि यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम रहता है, खासतौर से ये ख़वातीन ही इंतज़ाम रहता है? ये मियाँ का लंगर खाना है। मियाँ यहाँ बैठकर लंगर करते थे और ये काफ़ी बड़ा था। और ये यहाँ पर जो मज़ार है ये मियाँ के खादिम जुम्मा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का है। अच्छा, आप मियाँ के खादिम हैं जी। और उससे पहले ये सारा एरिया सब लंगर खाने में आता था। ये मियाँ के मज़ार के ठीक सामने है। अच्छा, आज भी यहाँ वही सिलसिला जारी है, यहाँ लंगर होता है, ज़ायरीन आते हैं जी। ये वही लंगर खाना है जिसमें मियाँ तशरीफ ख़वातीन का अपने तरफ से जी सब अपने तरीके से अपने तरफ से, कोई किसी से नहीं कहता है। सब लोग अपने यहाँ मियाँ की मोहब्बत में, मियाँ के चाहने वाले सब खिदमत में लगते हैं और मेहमानों की देखभाल करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी भी मैं बात कर रहा था, आप बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि एक वक्त ऐसा था कि हमेशा वैसे यहाँ पर लंगर हुआ करता था। मैं आपको ज़ायरीन, आपको दर्शकों, आपको मैं बता दूं, यहाँ हमेशा लंगर का एहतिमाम अभी भी होता है। कहा जाता है कि
کہ ایک بار جو تھا کچھ شک ہوا تھا میاں کہ کہاں سے یہ لنگر آ رہا ہے, کہاں سے کچھ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا واقعہ جی ہے. یہ بڑا مشہور اور بڑا پرانا واقعہ ہے میاں کے زمانے کا جی کہ اس وقت بہت غلے کی شارٹیج تھی جی تو یہاں پر مستقل غلہ یہاں پر مستقل لنگر چل رہا تھا. جی تو جب معلوم ہوا کہ بھئی یہاں کہاں سے اتنا لنگر آ رہا ہے کہ سب جگہ اتنی شارٹیج ہے اور یہاں پر لنگر چل رہا ہے, صبح شام زائرینوں کو خوب لنگر کھلایا جا رہا ہے. جی اس کے بعد پھر یہاں پر ریڈ ہوئی تھی جو کہ اس میں دیکھا گیا تھا. جی پہلے تو یہاں پر کچھ نہیں ملا تھا, جب ان لوگوں نے دیکھا جی تو یہاں پر کوئی اناج نہیں ملا تھا, کچھ نہیں ملا تھا. گوداموں میں سب نے دیکھا تھا, کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں ملی تھی. اچھا اس کے بعد وہ لوگ میاں کے پاس پھر آئے اور میاں سے فرمایا کہ یہاں پر تو کچھ نہیں ہے. تو آپ نے کیا بھیا سنبھال کر دیکھو, دوبارہ جب آئے ہو تو دیکھ لو, شاید کچھ نکل آئے. تو پھر اسی جگہ گئے, اسی گودام میں گئے, انہی بوریوں میں دیکھا تو سب میں اناج ملا. یہ آپ کی بہت مشہور اور بڑی بہت واقعہ, یہ بہت میاں کے سامنے کا, میاں کے زمانے کا ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے یہ. اچھا یہاں سارے لوگوں نے پھر اس کرامات کو آپ کی دیکھا اور وہ لوگوں نے واقعی میں جانا کہ اللہ والے, آپ اللہ والے ہیں اور آپ کی کیا شان ہے. بے شک سبحان اللہ. چلیے ہم یہاں بشیر میاں کے خاص طور سے یہ میاں کی آرام گاہ ہے. یہ کھٹولی شریف ہے, یہ کھٹولی شریف ہے. میاں اس پہ آرام کرتے تھے, اس پر بیٹھتے تھے. اور یہاں سے نکل کے یہ سامنے ہی دروازہ لنگر خانے کا ہے, بالکل کھٹولی سامنے لنگر خانے کا دروازہ جی. ہے. ابھی اس وقت بند ہے. جی. میاں کے زمانے میں یہ دروازہ کھلا تھا, اس دروازے سے میاں نکلتے تھے کھٹولی شریف سے اور سامنے دروازے میں لنگر خانے میں جاتے تھے. اچھا جتنے بھی لوگ آتے تھے ان کے سب کے لیے پورا لنگر چلتا رہتا تھا. جی بالکل بالکل. یہاں پر جی انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, چرند پرند سب کے لیے آپ نے پوری مخلوق کو اللہ کی لنگر کھلایا ہے. جنگلوں میں آپ ڈلواتے تھے جانوروں کے لیے, دریاؤں میں مچھلیوں کے لیے کھانا ڈلواتے تھے, انڈوں کے چیلے ہو کے آپ چھتوں پہ چیل کووں کے لیے ڈلواتے تھے. یہ ایک میاں کا ایسا لنگر مشہور, ایسا لنگر تھا ایک انسانی نہیں جانوروں تک کے لیے میاں لنگر کرتے تھے. واقعی دیکھا جائے انسان اشرف المخلوقات میں سے ایک ہے, لیکن ہر جاندار چیز کے لیے کہا جائے, کہہ رہے ہیں پرندوں کے لیے, انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, سب کے لیے ہی لنگر کا اہتمام کیا جاتا تھا. یہ وہ درگاہ ہے. یہاں پر واقعی بہت کہا جاتا ہے, پوری دنیا میں اس بات کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا. اور ابھی بھی لنگر کا اس طرح کا وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. میاں نے جو لنگر شروع کیا آج بھی وہ قائم ہے, آج بھی چلتا ہے. زائرین لوگ یہاں پر آتے ہیں, لنگر کھاتے ہیں. لوگ مہمان اپنی اپنی طرف سے جتنے میاں کے چاہنے والے ہیں سب لنگر بنواتے ہیں اور بہت لنگر یہاں چلتا ہے, بہت لنگر ہوتا ہے یہاں. جو بھی زائرین آتے ہیں خوب میاں کے کرم سے ان کو لنگر ملتا ہے. اور یہاں پر محلے میں باہر کے بہت لوگ یہاں لنگر کرتے ہیں. بہت اچھا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اندر چل رہے ہیں. جس طرح سے آپ کو خاص جو میاں حضور کے اور تبرکات ہیں ان کا بھی کم سے کم آپ کو دیدار کرا دیں. آپ ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی ہیں. جی اب حضور مجھے بتائیں حضرت کہ اس یہ میاں کے تبرکات ہیں جی جس کی زیارت ہم لوگ کر رہے ہیں. جی یہ میاں کی ہی جگہ کھٹولی ہے جہاں پر میاں آرام کرتے تھے. ان کے سارے تبرکات یہاں پر ہیں. جی یہ سہیل صاحب ہیں ہمارے, یہاں تبرکات کی صاف صفائی اور دیکھ ریکھ کرتے ہیں, یہیں پہ رہتے ہیں یہ. جی جی. اور یہ تبرکات کے بارے میں آپ کو ساری سہیل بھائی بتائیں گے, تھوڑا سا اوپر سے بتائیں سہیل بھائی. یہ آگے تھوڑا سا بڑھ کر یہ آپ کی تولیہ ہے. جی آپ کی تولیہ, تولیہ مبارک. یہ آپ کا رومال ہے جو آپ گلے میں ڈالتے. اچھا کون سا رومال ہے؟ یہ رومال ہے جو کہ میاں اپنے گلے میں ڈالتے تھے. اچھا. اور یہ تولیہ مبارک ہے جو میاں اپنے استعمال کرتے تھے. جی یہ بنڈی ہے. یہ بنڈی, یہ دیکھیے بنڈی شریف ہے جو میاں پہنتے تھے. اس کو یہ آپ کا لباس ہے جو آپ پہنا کرتے. اچھا آپ لباس سے جو پہنا کرتے تھے. بے شک سبحان اللہ. جی جی. یہ آپ کا کٹورا ہے نیم, جس میں آپ نیم پیتے تھے. نیم پیا کرتے, جوس پینا آپ کا اور نیم کے پتے چاپنا. اچھا نیم کا جوس اور نیم کے کھانا, کھانا کچھ کھانا نہیں کھاتے تھے مطلب باقی یہی کھانا آپ کا تھا. یہی نیم کے پتے چوسنا اور نیم کا جوس پینا, یہی کھانا تھا. کیا آنے سبحان والے کا کھانے کا اہتمام تھا یہاں سب کے لیے, سب طرح کا اہتمام ہوتا تھا, کھانے کا انتظام ہوتا تھا. کھانا اپنی آپ زندگی میں اپنے آپ بہت کم کھاتے تھے کھانا, بس
दूध बहुत हल्के दूध की आप चाय लेते थे और 2-3 रोज में आप बहुत हल्का सा खाना खाते थे, बाकी आप नीम के पत्ते पीते थे। बस ये थोड़ी सी आपकी जी नीचे आपके सैंडल हैं, आपके ये जी सैंडल्स हैं जी जी, ये आपके सैंडल हैं जी, ये आपका उगलदान है, उगलदान है ये आप देख सकते हैं जी जी, ये आपका बोरी का बिस्तरा है जिसपे आप तशरीफ फरमा होते अच्छा थे। देखिए बुजुर्गान दीन दुनिया में किस चीज की कमी नहीं थी, चाहने वाले बहुत थे, लेकिन कहा जाए कितने सादी जिंदगी जी, सादी जिंदगी, और दूसरों के लिए हमेशा दूसरों का को जो है का पेट भरे खाना मिले, उनको भूखा ना जाए कोई, उनके लिए पूरा इंतजाम थे। चश्मा है, चश्मा है वाकई, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग बरेली दर्पण पर ये लाइव तबरुकात देख रहे हैं बशीर मियां हुजूर के। बंडी शरीफ आपकी इसमें है। अच्छा, एक बंडी शरीफ आप देख सकते हैं, ये जो बॉक्स है इसके अंदर रखी हुई है, और भी बहुत सारी छड़ी शरीफ दिख रही हैं मुझको जी। आपकी छड़ियाँ हैं, छड़ी मुबारक है जी, छड़ी मुबारक। आपके जो है सब मतलब जो है तबरुक बना सब इस पे आकर के रख दिया। अच्छा, ये बात से तकसीम होना, अच्छा यहाँ से तकसीम होना, यहाँ से बाहर निकाल के मतलब कौन सा तबरुक खाने वाला है? हाँ, रोटी वगैरह। अच्छा अच्छा, यहाँ है, रोटी है। अच्छा, यहाँ रखा जाता था उस वक्त में जब जी वालिद साहब हमारे बताते थे कि खाने का इंतजाम जो है इकट्ठा करा, सब यहाँ रख दिया, यहाँ से तकसीम जो है बाहर जाता था। अब बराबर में जो है वो आपका गोदाम है जहाँ पे आपका छापा पड़ा था। अच्छा, वो गोदाम है जहाँ पर छापा पड़ा था। आपने तबरुकात देखे, यहाँ पर देखिए कसीर तादाद में लोग तबरुकात के दीदार करने के लिए आए हुए हैं। तो बरेली दर्पण भी आपको खास तौर से लाइव तस्वीरें दिखा रहा है, जिस तरह से बता रहे हैं कि ये वो जगह थी जिस जगह पर आपको देख सकते हैं कि जिसके बारे में जिक्र किया जाता है ब्रिटिश टाइम में, अंग्रेजों का ज़माना था, ब्रिटिश टाइम में जो थे जो सिपह सालार जो अधिकारी थे उस वक्त में बहुत ज़्यादा किल्लत थी राशन पानी की और लोग परेशान थे उस वक्त, बताया गया। तो उस वक्त भी यहाँ पर लंगर का एहतिमाम हुआ करता था, लंगर जारी था। तो इस बात को लेकर के लोग जो है अधिकारी लोग सोचने लगे कि आखिर यहाँ पर स्टॉक बना हुआ है, क्या है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लोग परेशान है जी। लोग कहाँ, ये पूछते थे लोग कहाँ से आ रहा है जी। हमारे कने मतलब कुछ नहीं है, आपके यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके जो है लोगों को खाने को मिल भी रहा है, आ भी रहा है। और हमने जिस वक्त लोगों को यहाँ पे आकर के दिखाया, अधिकारी लोग आए, उन्होंने देखा, बोले भाई यहाँ तो कुछ है नहीं। उनको दरवाज़ा खोला, बोले दरवाज़ा खोल लो, देख लो। उन्होंने दिल भर के जब देख लिया चारों तरफ, उन्हें कुछ नहीं मिला। कपड़ों उसमें जो है कट्टों में जो है सिर्फ रेता, बजरी और ये क्या नाम है कोला सब बन गया था। अच्छा, मियाँ ने जब आपको जब चौखट से आप लोग बाहर जाने लगे तो आपसे जो है आपने इशारे से कहा कि आइए आ जाओ, तुम लोगों ने अभी कुछ नहीं देखा, एक नज़र जो है तुम मेरी तरफ से जाओ और तुम वहाँ पे नज़र डाल लो। मैं तुमसे कह रहा हूँ इस बात को ध्यान दो, जो मैं कह रहा हूँ आप वो देख लो। ये मेरी तरफ से है कहना कि आप एक बार फिर से जाके देख लो। वो आपके कहने से जो जाते हैं तो वो सोना जो है क्या नाम है मिट्टी भी सोना बन जाती है वहाँ। अच्छा जी, कि वो आपके जो है सारे कट्टे जो जिसमें कोला और बजरी भरी हुई थी सब में राशन हो गया, किसी में धान, किसी में बाजरा, किसी में चावल, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो ये समझ लीजिए सब वो अधिकारी आपके पैरों पे गिर गए। अच्छा, ये बताइए वो आता कहाँ से था, कुछ पता किया कि जी लोग ये थे, अल्लाह की शान थी जी। ये जो सब बुजुर्गान दीन की शान है कि वो कहाँ से आता था, ये तो किसी को आज तक खबर ही नहीं हुई। आने वालों का जो है रास्ता नहीं दिखता था, जाने का रास्ता, लोगों को खिलाने का रास्ता दिखता था। हाँ ये आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा कहाँ से आ रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब आपको जो है कम से कम कोशिश करूंगा दरगाह शरीफ के दीदार कराने की, और उसके साथ ही इख्तिताम कर देंगे प्रोग्राम का। बरेली दर्पण आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है, आपको पूरा यहाँ तबरुकात बशीर मियां हुजूर के दिखाया। आपको लगातार कोशिश है बरेली दर्पण की कि आप तक जो है जो अकीदतमंद हैं और जिस अकीदे के साथ यहाँ पर बुजुर्गान दीन के यहाँ आते हैं तो वो उसको ज़रूर आप तक पहुँचाए। मैं इंशाअल्लाह आपको जो है दरगाह पर लेकर चलूँगा अब, क्योंकि वहाँ उस वक्त काफ़ी भीड़ थी और जो तबरुकात का जिनका आज दीदार कराया गया था, जो साल भर में 2 बार दीदार होते हैं, उसको के लिए उसको रखने का वहाँ इंतज़ाम हो रहा था। मैं कोशिश करूँगा जो ख़ास जो यहाँ पर खिदमतगुजार हैं, जो यहाँ पर ज़्यादा नशीन हैं, उनसे मैं बात करूँ। बरेली दर्पण पर आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और जिस तरह का मंजर है अपने आप में वाकई काबिल तारीफ़ है, और मैं कहूँगा कि उसी ख़ानदान से हैं। बहुत बहुत मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी हज़रत, अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, और कि आप पूरा जो उर्स का 2 रोज़ का एहतिमाम किया गया और उसके साथ साथ आज तबरुकात जिस तरह से दीदार कराए गए। अभी इससे पहले मैं बशीर मियां हुजूर के भी तबरुकात का दीदार कराया, और इससे पहले आप जब तबरुकात दीदार करा रहे थे तब हमने बताया था, दिखाया था। तो शुक्रिया अदा करते हैं, आपने बरेली दर्पण पर भी काफ़ी कोशिश की कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाएँ। कैसा रहा उर्स का पूरा जो इंतज़ाम थे?
उर्स का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा और जो कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन का हिसाब किताब था उसके हिसाब से हम लोगों ने बड़ा जो सुकून के साथ उर्स का प्रोग्राम जो है सब अदा करवाया और लोगों को जो है इस बात के लिए जो है ताकीद करते रहे कि सब लोग जो है मास्क वगैरह लगा के रहें, थोड़ी थोड़ी दूरी बना के रहें। और 3 रोज़ा उर्स हमारा आका क़िबला ख्वाजा मोहम्मद बशीर मियां हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह का मनाया गया। पहले दिन जो है सुबह को जो है कुरान ख़ानी से जो है उर्स की आगाज़ हुआ और रात में मिलाद शरीफ का प्रोग्राम वगैरह सब कुछ हुआ। दूसरे दिन आका का विसाली कुल शरीफ हुआ 9:15 पर, चांद की 26 तारीख को होता है और 27 तारीख को यानी कि इतवार के रोज़ शाम को आखिरी कुल शरीफ 4:30 पर हुआ। और हर साल की तरह इस साल भी आज आखिरी दिन जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुब्बे शरीफ की ज़ियारत और दस्तार मुअज़्ज़म की ज़ियारत कराई जाती है, वही आज कराई गई है। ये साल में 2 बार होती है ज़ियारत, एक रबीउल अव्वल शरीफ वाले दिन होती है और एक जब सरकार का उर्स मुबारक जब ख़त्म हो जाता है उसके आखिरी दिन जो है ज़ियारत कराई जाती है। उसमें और बुज़ुर्गों के तबरुकात भी हैं, सैयदना हुजूर बड़े पीर साहब के तबरुकात हैं और हमारे आका के जद्द अमजद जो है शाह दरगाही में हुजूर रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ शाह जमालुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रामपुर शरीफ और हमारे आका के तबरुकात हैं इसमें। तो ये जो है उसका प्रोग्राम जो है 3 रोज़ा चलता है और माशाल्लाह बड़ी शान व शौकत से हुआ और बड़े बड़े दूर से लोग जो है यहाँ तशरीफ़ लाए थे और इंशाल्लाह जो है बड़े सरकार के फैज़ो करम से जो है वो लोग माला माल होते हैं और सरकार के यहाँ जो भी मुरादें मांगते हैं, जो भी तमन्नाएं लेके आते हैं वो इंशाल्लाह उनकी पूरी होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कहाँ कहाँ के ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं? यहाँ माशाल्लाह बाहर से बहुत लोग आते हैं, जैसे कि दिल्ली है और जो है गाज़ियाबाद वगैरह और रामपुर शरीफ, मुरादाबाद, लखनऊ, झांसी, आजमगढ़ वगैरह इन सब जगहों से जो है बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ आते हैं और हमारे आका के जो खुलफा लोग जो हैं उनके यहाँ के सज्जादा नशीन भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर अपने बारे में हज़रत थोड़ा सा बता दें ताकि लोग जान पाएँ आप। मैं यहाँ आका बशीर में हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमत में रहता हूँ और यहाँ मस्जिद में इमामत करता हूँ मैं और बस ये इनका फैज़ो करम है जो मुझसे खिदमत ले रहे हैं। सज्जादा नशीन साहब यहाँ अब कमेटी है यहाँ पे, कमेटी है जी। अच्छा, नाज़िम मियाँ साहब से मुलाकात हो पाई? ताज़िम मियाँ साहब से जी हो जाएगी। जी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं दरगाह पर कम से कम एक बार ज़रूर फातिहा पढ़ लूँ। जी जी जी। तो आप मैं एक बार चलिए एक बार लंगर आपको ज़रूर दिखा दूँ मैं। आइए, क्या बताएं थोड़ा लंगर के बाद, उसके बाद इंशाल्लाह मैं फातिहा में शरीक हूँगा और भाई साहब मेरे साथ हैं, हमारे साथ फातिहा पढ़ेंगे और आप के लिए भी सबके लिए दुआएं होंगी। अभी बरेली दर्पण पर ही आप लाइव तस्वीरें देखेंगे, इस बार लंगर का एहतिमाम किया जा रहा है और जिस तरह से देखें कि अच्छा ख़ास तौर से ये मतलब वेज होता है या इसमें गोश्त का भी कुछ नहीं? इसमें दोनों होते हैं, आलू के भी होते हैं और नॉन वेज वेज दोनों ही बनते हैं। अच्छा, ये यहाँ से लंगर तस्लीम होता है, यहाँ पे लोग बैठ के जिस तरीके से खा रहे हैं देखिए आप, यहाँ पर पूरे दिन और उर्सों में पूरे दिन यहाँ पर लंगर ऐसे ही खिलाया जाता है। अभी भी लोग यहाँ पर ज़ायरीन आए हुए हैं, मेहमान हैं, अब खाना खा के अपने अपने घरों पे जाएंगे। कुल आज मुकम्मल हो गया तो यहीं पे सबको बिठाल के लंगर खिलाया जाता है और मस्जिद में खिलाया जाता है और मोहल्ले के घरों में भी यहाँ खिलाया जाता है। पूरे मोहल्ले में एक तरीके से लंगर खिलाया जाता है और तस्कीम होता है, सब लोग करते हैं। अच्छा, तो हम लोग एक बार दरगाह आपके साथ चलें, एक बार फातिहा पढ़ दीजिए और लोग शामिल हो पाएँ जो लोग बरेली दर्पण। मैं आपको मियाँ क़िबला बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की आप अहलिया और उनकी बेटी का मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत अभी कराऊंगा आपको, ये मस्जिद में है सामने। जी जी जी, चलिए कम से कम हम फातिहा ज़रूर कर लें और दरगाह पर आए हैं यहाँ पर और उनके छोटा कम से कम लोगों के लिए दुआ कर दे बशीर मियाँ हुजूर के यहाँ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्लि शै बिअज़्नि जमालिका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालिक व मौला क़िबला हुजूर हाजी शाह मोहम्मद बशीर मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में मौला जिन जिन लोग हाजिर हुए, जिन्होंने हाज़िरी दी है, उन सबकी हाज़िरी को कबूल बारगाह अता फरमा।
यहाँ पर आने वाले तमाम चाहने वालों की बलाओं को, मुसीबतों को, आफतों को, परेशानियों को दूर कर दे। मौला जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। जो इस वक्त रिजवान भाई के चैनल से जो इस वक्त लोग हाजिरी कर रहे हैं और देख रहे हैं, मौला उनकी सबकी दिली नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। मौला उनकी हाजिरी को कबूल फरमा। मौला जो लोग नहीं आ पाए हाजिरी देने के लिए, मौला उन सबकी हाजिरी को कबूल बारगाह अता फरमा। उनकी सबकी दिली नेक जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। मौला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में हमारे आका के वसीले से हम सब की परेशानियों को दूर कर दे। मौला इस दरबार में आने वालों की लाज रख ले। और मौला जो बीमारी जो फैली हुई है, मौला ये सारे दुनिया में जो बीमारी फैली है, मौला इसको अपने हबीब के सदक़े में और बुजुर्गों के करम से मौला इसको ख़त्म कर दे। मौला जो लोग इसमें मुब्तला हैं उन्हें शिफा अता फरमा। मौला हमारे मुल्क में अमन व सुकून अता फरमा। हमें आपस में इत्तफाक से मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जो भी आसमानी दुनियावी बीमारियां हैं, आफतें हैं, मुसीबतें हैं, मौला उनको अपने करम से दूर फरमा। मौला हमें बशीर रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ से माला माल फरमा। मौला इनके दर पे आने वालों को अपने करम से मौला बीमारियों से, मुसीबतों से महफूज रख। मौला दुनिया में अमन व सुकून अता फरमा। मौला सब पे रहम कर, सब पे करम कर, सबके भले में हमारा भी भला कर। नूर शहीद व साबे वरे अजमईन बेरहमतिक या रब। एंड कर दे रहे हैं। ठीक ठीक। तो जिस तरह से आपने नाज़रीन देखा, बरेली दर्पण ने आपको बशीर मियाँ हुजूर की दरगाह पर का दीदार कराया और जिस तरह से यहाँ के पूरे इंतज़ामात के बारे में और यहाँ लंगर शरीफ के बारे, लंगर से लेकर के और तबर्रुक शरीफ के बारे में जिस तरह से आपको कवरेज की है और आप तक दीदार कराया है। बरेली दर्पण की हमेशा यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस तरह के चाहे किसी भी मज़हब के प्रोग्राम हों, उनको कम से कम आपको घर बैठे वहाँ के बारे में बता पाए और आपको उसमें शिरकत करा पाए। तो दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम, हमारी कोशिशें कैसी लगी कमेंट करें। साथ ही आपसे भी कहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह और फिर कुछ तरह के प्रोग्राम होंगे, किसी भी मज़हब के हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिस धर्म के भी जहाँ पर भी होते हैं। बरेली दर्पण की यही कोशिश रहती है कि उसको दिल से आप तक पहुँचाए। जो भी जिस मज़हब के जानने वाले हैं मेरे, क्योंकि सभी मज़हब से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक जो है कम से कम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपने जो फॉलोवर्स हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचा पाएँ। बशीर मियाँ हुजूर के बारे में फिर और बहुत सारी जानकारियाँ ज़रूर दूंगा, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह यहाँ के दरगाहों की बनाने की। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए, आदाब अर्ज़ है।